Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. हम बात करेंगे QS World Future Skills Index की, Indian National Science Academy, Atomic Energy Commission, Future of Indian Higher Education System, Reforms for Combating Honor Killings. So ये जो आपके articles हैं, they are blend of prelims as well as mains. So if I talk about like higher education से जुड़ा हुआ article है, so with which paper you will connect it with? Obviously GS paper 2, education, welfare schemes, skill development, है ना. और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? What are the reforms that are taken in the higher education system? What are the issues that are associated with the higher education system? Means perspective. If I talk about honor killing, so with society you will link it, judiciary से भी लिंक करेंगे. कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि विल टॉक अबाउट जुडिशियल प्रोविजंस एंड लीगल प्रोविजंस ऑल्सो. बट आप इसको इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू वुमेन उससे भी कनेक्ट कर सकते हो, जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो. पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन इसलिए बोल रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट जो है उसके बेसिकली जो हेडलाइन है, जो न्यूज़ है उसके कॉन्टेक्स्ट में. तो जैसे जैसे आगे आएंगे आर्टिकल्स, यू विल गेट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ इट, एंड रेस्ट अबव दीज 3 आर्टिकल्स जो मेंशन है, दे यू कैन कनेक्ट विद योर prelim. So this will be our topic of discussion for today. Please mark your attendance by liking this lecture. You have comment section. Do share your feedbacks. Whatever is your genuine feedback, do let me know. And click on the thumbs up button. You will get a thumbs up button on your screens, and when you'll click it, basically your attendance will be marked. Also, Sriram's IS is serving the nation since 1985. You can trust the quality content that is being shared with you. We are offline and we are online as well now. There is prelims mastery course that Sriram's IS is offering for the one who are preparing for upcoming prelims 2025. So for that detailing, you can contact this number that is available on the screen. Fine. Chaliye, now without taking any much time, let's start with the first article. QS World Future Skills Index 2025 के हिसाब से India has emerged as the second most prepared job market globally for future in demand skills, trailing only the United States. So basically ये जो इंडेक्स है, क्या क्या पता होना चाहिए, कौन लेकर आता है ये इंडेक्स, कंट्रीज की कैसे रैंकिंग होती है, किन पैरामीटर्स पे होती है, ये सब कुछ. कॉन्टेक्स्ट ये कह रहे हैं कि ये जो इंडेक्स है ये कंट्रीज को रैंक करता है बेस्ड ऑन how well their job markets are prepared to meet the future skills demand. जैसे आपकी skills होती हैं, what are you doing in your education system, वैसा ही you are going to equip people with that skills, है ना. So क्या job markets, how well the job markets are prepared, जो आने वाले टाइम में, अब जो मान लो एक बैच निकलेगा, तो हाउ कॉम्पिटिटिव दे आर, और आर दे रेडी फॉर द जॉब मार्केट इज रेडी फॉर दैट स्किल सेट. तो जब उसकी बात आती है तो वो बोल रहे हैं कि इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट प्रिपेयर्ड जॉब मार्केट ग्लोबली, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद. सो ओवरऑल 3 चीज़ें हैं यहाँ पर. पहली चीज़ ये है कि जैसे व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, देखो मैं चाहूँ तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को ऐसे हवा में लेके सीधा इंडेक्स बताया, चलो 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 बात खत्म हो गई, बट नहीं, लेट्स टेक द एनालिसिस एंगल ऑल्सो, जो आप इस अपने पेपर में भी यूज़ कर सकते हो, पेपर 2 में भी, और अभी एडुकेशन वाले आर्टिकल से भी कनेक्ट कर पाओगे फिर. तो देखो, इंडियाज वर्कफोर्स एंड द एजुकेशन सिस्टम बोथ, दे आर डूइंग वेल. दे आर डूइंग वेल इन इक्विपिंग पीपल विद द स्किल्स, हाई डिजिटल लिटरेसी, critical thinking, technological proficiency, यही सब होना चाहिए, right? So India is seen as, second point, India is seen as having that infrastructure, the policies, the training programs that are there in place to adapt its workforce to the changes in the global job market also. So overall, India is in a strong position to handle the shifts in the job market driven by advancements in technology and changing industry. So ये कह रहे हैं कि इंडिया की जॉब मार्केट रेडी है फॉर द फ्यूचर इन डिमांड स्किल्स. अब जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज आर गेटिंग चेंज, राइट? सो टू हैंडल दीज शिफ्ट्स इन द जॉब मार्केट, इंडिया इज रेडी फॉर दैट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल. The inaugural Future Skills Index is released by London-based Quacquarelli Simons. कंट्रीज को इवैल्यूएट करते हैं ऑन देयर रेडीनेस टू मीट इवॉल्विंग मार्केट डिमांड्स, कि हाउ वेल कंट्रीज आर
प्रिपेयरिंग देयर पीपल एंड द जॉब मार्केट फॉर द फ्यूचर वर्क नीड। तो उसके बेसिस पे 4 बेसिस पे असेस किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। स्किल्स फिट मतलब हाउ वेल पीपल स्किल मैच द जॉब ऑफ द फ्यूचर। क्या आपकी स्किल्स अपकमिंग जॉब मार्केट के साथ फिट बैठ रही हैं। दूसरा, एकेडमिक रेडिनेस की क्या एजुकेशन सिस्टम, हाउ दीज सिस्टम्स आर प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स फॉर दीज जॉब्स। तीसरा, अ कंट्रीज रेडिनेस to adapt to the changing job roles, future of the work. And fourth is economic transformation, how countries are building the industries for the future, green energy technology। तो हम इस रिपोर्ट में इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि इंडिया इज शोइंग स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल इन दीज सेक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल एंड ग्रीन इंडस्ट्रीज, राइट, दे आर क्रिटिकल एरियाज ऑल्सो फॉर द फ्यूचर ग्लोबल जॉब मार्केट। इंडिया की रैंक अगर आप देखें सो इट 25th अक्रॉस ऑल द इंडिकेटर्स। इंडिया की रैंक 25th है ऑन द इंडेक्स, बट जब हम फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर की बात करते हैं, इट अर्न द स्पेशल रिकॉग्निशन, इट इज एक्चुअली एक्टिवली इंप्रूविंग इट्स रेडीनेस। तो यहाँ पर इंडिया एक्सेल कर रहा है, राइट, जो भी ओवरऑल हमने बात करी। तो इंडिया का हाई स्कोर है 100 में से 99.1 है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू अडेप्ट टू द चेंजेस, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज ग्लोबली रिक्रूटिंग फॉर डिजिटल रोल्स, राइट। India is in that strong position to lead the world in skills. India is identified as the most prepared nation to recruit for digital roles. What else? India की outstanding GDP growth, youthful population and burgeoning startup culture. Startup के बारे में कल परसों ही मैंने in detail article cover किया था। India has many startups, innovation और हो रहा है, young population है, demographic dividend, fast GDP growth, ये सब इंडिया के हित में जाती हैं बातें। और रही बात जो ये कह रहे हैं कि वेयर वी कैन इम्प्रूव, देखो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को, जो हायर एजुकेशन सिस्टम्स और इंडस्ट्रीज के बीच में जो गैप है वो आप ठीक कर सकते हैं। डिजिटल और एआई में और ज़्यादा एक्सपैंड करें अपने फोकस को, दैट नीड टू बी अलाइंड विद द एम्प्लॉयर्स। इंडिया कुछ मेट्रिक्स में लो है, इंडिया स्कोर्स लो ऑन दिस मेट्रिक्स लाइक फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, कि इंडिया इज नॉट डूइंग वेल एज in these areas that is related to sustainability, environment friendly practice बोल दो, तो वो बोल रहे हैं कि इंडिया को यहाँ पर अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा एंड हैव टू लुक फॉर द फॉरवर्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, अच्छा, श्रीराम IAS इज कमिंग अप विद दिस न्यू पॉडकास्ट सीरीज, एपिसोड 1 इज देयर फॉर यू, बट ये सीरीज, ये पॉडकास्ट सीरीज काफ़ी लंबी चलेगी। यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड get the best use of it। बहुत अच्छे से through dialogues, best of faculties will be taking these lectures, these sessions, these podcasts। international relations का पहला episode है geopolitical dialogue कि why is West Asia always in crisis, so they'll talk about it in detail and you can get the complete picture, write the points and use them in your answers। current affairs की बाकी series भी चल रही हैं, other faculties are taking, so you can refer that also। नेशनल साइंस एकेडमी के बारे में बात करते हैं। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, विच यूजुअली रिकॉग्नाइजेस ओनली प्रोफेशनल साइंटिस्ट एज फेलोज, हैज मेड एन एक्सेप्शन दिस ईयर। इस बार इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने दिस ईयर्स एनुअल लिस्ट ऑफ फेलो from deviates from the tradition by including renowned Indians who aren't professional scientists। क्या बोल रहे हैं ये? देखो, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी जो है ना, which recognizes only professional scientists as fellows, अब पहली बार this list includes those Indians from other professions जो formally they're not scientists but they have made significant contribution to the science, to technology, to innovation in some way or the other। Obviously ये जो shift है, it is a break from the tradition। ठीक है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे INSA के बारे में। 1935 में ये एकेडमी एस्टैब्लिश हुई, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट साइंस इन इंडिया, हार्नेस साइंटिफिक नॉलेज फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेशनल वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव क्या है? साइंस रिसर्च, नई डिस्कवरीज को सपोर्ट करना, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो हेल्थ, टेक्नोलॉजी, इन सब में आ रही हैं, राइट। सो द फाउंडेशन ऑफ द एकेडमी, अर्लियर नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ इंडिया, वॉज द आउटकम ऑफ the joint endeavors। तो ये जो एकेडमी है, इट इज एन आउटकम ऑफ
जॉइंट एंडीवियर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री की बात कर रहे हैं बेसिकली। ओरिजिनली इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ इंडिया बोला जाता था। इट वाज सेटअप विद द हेल्प ऑफ सेवरल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स, जिसमें इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन भी थी। सो इट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन कैलकाटा। इट वॉज ऑपरेटेड फ्रॉम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1951 तक। फिर उसके बाद दे मूव टू दिल्ली, इनॉग्रेटेड एट कैलकाटा विद इट्स हेडक्वार्टर एट एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और फिर बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्वियसली इंडिया में साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करना, साइंटिफिक एकेडमीज और सोसाइटीज और इंस्टीट्यूशंस में कोऑर्डिनेशन लेकर आना। एक बॉडी है, acts as a body of scientists of eminence for the promotion, for the safeguard of the interest of scientists in India. साइंटिस्ट के हित के लिए है, राइट। साइंटिफिक वर्क जो भी कंट्री ने किया है उसको इंटरनेशनली प्रेजेंट करना भी इस एकेडमी का काम है। सो इट एक्ट through properly constituted national committees in which other learned academies and societies may be associated for undertaking the scientific work for national and international importance. Basically ये बोल रहे हैं ये जो अकेडमी है ये कमेटीज बना लेती है टू टेक ऑन द प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो। So INSA publishes scientific journals, reports and books. Collaboration it promotes between the science and other fields also, be it literature, philosophy. INSA manages funds and donations to support the scientific research and collaboration. So it publishes these journals, it maintains the link between science and humanity, it secures and manages funds to perform all other acts that may assist in or be necessary for the fulfillment of the above mentioned objectives of the academy. Overall, simple terms mein, INSA is like a big team of scientists who are working together to improve science in India. Scientists collaborate, solve the problems, share their work, represent India's scientific achievements to the world also. It works to make science more useful for the people. It connects it with other areas also like art and culture. ठीक है, so it plays a very important role. Sorted है। चलिए, यही कुछ लिखा हुआ है। इट सर्व्स एज अ फोरम, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। सीनियर साइंटिस्ट आर ऑनर्ड, एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं विद डिफरेंट अकेडमीज, everything. It was designated as an adhering organization in India to be the International Council for Science on the behalf of Government of India in 1968. ठीक है, 1968 में इस ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया गया टू रिप्रेजेंट द कंट्री इन ICSU, ये बोल रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। तो रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, कोई बॉडी है और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन मेन बॉडी इन चार्ज है ऑफ मैनेजिंग इंडियाज एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। सो इट इज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। 1954 में 3 अगस्त को ये सेटअप हुई थी अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। नाउ इट्स पर्पस इज टू सेट द पॉलिसीज, गाइड द वर्क इन द एटॉमिक एनर्जी। जो सेक्रेटरी है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, दे ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरमैन ऑल्सो, राइट? सो प्लीज डू रिमेंबर दैट। What else? Subsequently, in accordance with the government resolution dated 1st of March 1958, Atomic Energy Commission was established in the Department of Atomic Energy. सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे अभी नहीं है। एक बॉडी है, 3 अगस्त 1954 को पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर ने सेटअप करी थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्रेटरी होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस डिपार्टमेंट, वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं AEC के। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। जो बाकी मेंबर्स होते हैं AEC के, दे आर अपॉइंटेड फॉर ईच कैलेंडर ईयर। कौन कैसे अपॉइंट करते हैं बाकी मेंबर्स को? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चेयरमैन। और फिर कौन अप्रूवल देता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं देते हैं। रही बात डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, ये डिपार्टमेंट में सारे वो एरियाज इट एनकम्पासेस दैट आर रिलेटेड टू पावर एंड नॉन पावर एप्लीकेशंस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट इस डिपार्टमेंट का काम है। उस एक्सप्लोरेशन करना, आइडेंटिफाई करना, यूरेनियम रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग करना, फैब्रिकेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, प्रोडक्शन ऑफ हैवी वाटर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, सारा काम ये डिपार्टमेंट देखता है। और ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट इन द फ्यूजन टेक्नोलॉजीज, उसमें भी इनका काम है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इनका काम है। सो ये इनका पूरा डिपार्टमेंट का मैंडेट है, ठीक है। इट कैरीज आउट कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजीज, आइसोटॉप्स,
ताकि फूड में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर के अंदर आप और ज़्यादा डेवलपमेंट लेकर आ पाए। ये सारा काम डिपार्टमेंट देखता है। एजुकेशन सिस्टम की बात करनी है। हाउ नॉट टू रन बेसिकली दिस पर्टिकुलर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। अब एजुकेशन सिस्टम में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम क्या बात करेंगे। ये आर्टिकल न्यूज़ के अंदर आया दैट वाज सेइंग कि देयर आर ना रिसेंट डिस्कवरीज आप बोल सकते हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में दिस आर्टिकल वाज देयर कि इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में देयर आर सेवरल रिफॉर्म्स, वी ऑल नो दैट, राइट। अब कंट्रोवर्सी जो थी दैट वाज ओवर यूजीसी's ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट्स। तो एक डिबेट रही है इन इंडियाज हायर एजुकेशन सेक्टर कि जो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट रही है उस पर क्रिटिसिज्म बहुत आया कि यहाँ पर स्टेट की ऑटोनॉमी को अंडरमाइन किया जा रहा है। हम बात करेंगे इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम की, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट आंसर्स आपको लिखने हैं। Now, as far as India का higher education system is concerned, पहले तो let's talk about, इसमें हम बात करते हैं पॉलिसी आई थी NEP, उसकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसने एजुकेशन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल किया, इंक्लूसिव किया एंड ब्रॉट दैट रेलिवेंट नीड्स टू द फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। स्टूडेंट्स को किसी एक मतलब दे डोंट हैव टू स्टिक टू वन स्पेसिफिक स्ट्रीम, अच्छा आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, वैसा नहीं है। दे कैन कंबाइन द सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन। एक तरफ फिजिक्स है तो दूसरी तरफ वो हिस्ट्री और म्यूजिक के साथ उसको कंबाइन कर सकते हैं विद कंप्यूटर साइंस, तो दे कैन कंबाइन द सब्जेक्ट्स, दे कैन लीव द कोर्स, दे कैन रीजॉइन इट लेटर, राइट। तो एजुकेशन फ्लेक्सिबल हो गया, सुटेबल हो गया। जहाँ पर 10+2 ये वाला सिस्टम चलता है, अब न्यू स्कूल स्ट्रक्चर क्या हो गया, 5+3+3+4। व्हाट इज दिस? 5 साल की फाउंडेशनल स्टेज, जब बच्चा प्री प्राइमरी से क्लास 1st 2nd में होता है। 3 years मतलब प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें आप थर्ड से 5th तक। 3 years मिडिल स्टेज 6 to 8 एंड 4 साल के 9 to 12। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा कहता है कि देखो एक फाउंडेशनल स्टेज होती है, एक प्रिपरेटरी, एक मिडिल और फिर एक सेकेंडरी स्टेज होती है। और क्या आया इस पॉलिसी के तहत? रिसर्च और इनोवेशन और ज़्यादा एम्फेसाइज करी गई, हायर एजुकेशन में और ज़्यादा एनरोलमेंट हो। तो गोल क्या है? गोल है टू गेट 50% ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स इनटू द हायर एजुकेशन बाय 2035। 2035 तक आप चाहते हो 50% एलिजिबल स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के अंदर हो, मतलब हायर एजुकेशन और ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाए और अट्रैक्टिव हो जाए टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यू इंट्रोड्यूस वोकेशनल ट्रेनिंग इन द स्कूल्स, जॉब रिलेटेड स्किल्स, जो भी मैंने आपके साथ रिपोर्ट भी बात करी थी, राइट। सो पॉलिसी का ओवरऑल एम यही रहा है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को उनकी जो क्वालिटी है उसको आप ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ मैच करें। यू एनकरेज फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की वो इंडिया में आके कैंपस सेट करें और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को आप compete करवाएं ग्लोबली। साथ ही साथ अगर आपने सुना हो ABC इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जहां पर बच्चा क्या करता है, दे कैन कलेक्ट, दे कैन स्टोर देयर एकेडमिक क्रेडिट्स, जो उन्होंने कोर्स में मार्क्स अर्न किए हैं। मतलब मान लो इफ अ स्टूडेंट चेंजेस द कॉलेज और दे नीड टू टेक अ ब्रेक, तो वो जो क्रेडिट है दैट विल बी काउंटेड टुवर्ड्स देयर डिग्री। बच्चा अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकता है अपने पेस पे ही, दे कैन लीव, दे कैन एग्जिट। तो इसके लिए दे हैव दिस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ऑल्सो। डिजिटल लर्निंग्स, एडटेक, अभी आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ रहे हो, है ना। ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कितने हो गए। सो दीज आर द थिंग्स। हायर एजुकेशन को ज़्यादा इंटरनेशनलाइज करना, अटल टिंकरिंग लैब्स, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये आप अपने कीवर्ड्स हैं, आप दिखा सकते हो कि इंडिया क्या क्या कर रहा है। और अच्छा स्कीम्स है, जैसे PM श्री स्कूल स्कीम चलाई, तो ये बेसिकली बता रहे हैं कि सरकार एजुकेशन सिस्टम में ये सारा योगदान दे रही है। हालांकि चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि रिसर्च इकोसिस्टम अभी भी इट लैक्स दैट स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर। फैकल्टीज की शॉर्टेज अभी भी है।
स्किल गैप परसिस्ट करता है, क्वालिटी गैप परसिस्ट करता है, एनरोलमेंट रेशो लो है, इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में जो लिंकेज है वो इनएडवोकेट है, देयर इज ओवर सेंट्रलाइजेशन, राइट, डिजिटल डिवाइड। अब ये हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो नेट कनेक्टिविटी हर जगह होनी चाहिए, राइट। क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते हैं, क्वालिटी पे करना चाहिए। फोकस करना होना क्या चाहिए, क्वालिटी पे फोकस, बट फोकस किस पे होता है, क्वांटिटी पे। तो ये सारी चीजें हैं दैट आर दी challenges in this particular domain. ठीक है जी। So moving ahead with the last article of today's session, in an honor killing case in Madhya Pradesh, a girl was shot dead by her family for wanting to marry someone of her choice against their wishes. Honor killing क्या होता है? When someone in a family, someone may often a woman, she's killed by their relatives. क्यों? बिकॉज अच्छा ये तो हमारे फैमिली के लिए बहुत ही शर्मिंदगी का काम कर रही हैं, दैट इनका अगर आप एक अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाह रही हैं तो हमारी फैमिली का क्या स्टेटस रह जाएगा, दे आर ब्रिंगिंग डिसऑनर टू द फैमिली। इफ अ पर्सन इज चूजिंग टू मैरी समवन अगेंस्ट देयर फैमिलीज विशेस और दे डज समथिंग जो सोशल रूल्स और स्ट्रिक्ट कल्चरल उनके जो रूल्स के हिसाब से दैट इज अनएक्सेप्टेबल, तो बहुत से प्लेसेस में इंडिया के अंदर ऑनर किलिंग हैपेंस, क्योंकि फैमिली को ऐसा लगता है कि उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, राइट। सो दिस आइडिया ऑफ ऑनर इज यूजुअली कनेक्टेड टू हाउ अ वुमेन बिहेव्स। जनरली वुमेन होती है, किसी के साथ आप अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं और देयर इज एनी रिलेशनशिप, तो देयर आर रीजंस फॉर इट। देखो इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा एक बिग रोल प्ले करता है। अगर आपकी बेटी ने किसी दूसरी कास्ट में शादी करी तो पीपल इन इंडिया, देयर आर प्लेसेस वेयर पीपल किल देयर ओन फैमिली मेंबर्स लाइक द वुमेन इफ दे मैरी समवन फ्रॉम अ डिफरेंट कास्ट, क्योंकि हमारी फैमिली का सोशल स्टेटस चला गया, ऐसा सोचते हैं। दूसरा पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं। बहुत से कल्चर्स में आज भी जब घर के बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं तो विमेन्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। दे आर नॉट अलाउड टू मेक देयर ओन डिसीजंस ऑल्सो, कि अच्छा आपको किससे शादी करनी है वो भी विमेन नहीं बताएगी, शादी उन्हें करनी है, राइट। सो दीज आर सर्टेन रीजंस। इंडिया के अंदर अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले हरियाणा का सेक्स रेशो के बारे में डिस्कस किया था। So there is gender imbalance also, right? Families women को ऐसे देखती हैं as you can say as the one as property, or they are very strict about who they marry, right? अब social status भी साथ में आप लगा लीजिए जुड़ा हुआ है। So इसका consequence क्या होगा? अच्छा ये देखो आप, एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा, ऑनर किलिंग्स इंडिया के अंदर इट वाज 25 ईच इन 2019 एंड 2020, 33 बढ़ गया 2021 में, राइट। कुछ चीजें देखो शो भी नहीं होती हैं, कुछ रिपोर्ट भी नहीं होती हैं। सो जो कॉन्सेप्ट है ना ऑनर का, दैट इज टाइड टू वुमेन्स बिहेवियर, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं? वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, गवर्नेंस चैलेंजेस, कल्चरल बैकवर्डनेस, सोशल इम्पैक्ट, इंटरनेशनल रिपरकशंस भी होंगे। सो दीज आर द थिंग्स। हालांकि इंडिया के अंदर देयर आर लीगल प्रोविजन, सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 299 to 304 ऑफ दिस आईपीसी, सेक्शन 34, 35, 308 है, बट अगर इस पे काम करना है, न्यू लेजिस्लेशन लाना है चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, द वेटिंग पीरियड फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन अंडर द अमेंडमेंट स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 शुड बी रिड्यूस्ड, अ न्यू प्रोविजन शुड बी एडेड टू द आईपीसी स्पेसिफिकली जो डिफाइन करे कि ऑनर किलिंग्स को, क्लियर पनिशमेंट्स होनी चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू फ्रॉम
governance part. This was the whole session. I hope things are clear. In case you're having any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you everyone for giving your valuable time. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning. All the best. Thank you.